So we were solving homogeneous equation with constant coefficients, and uh, we substitute y equal to e power r x, where r is a constant. Then three cases arises. So first is you have distinct real roots. In that case, you can find two solutions, e power r1x and e power r2x. Second case is that you have two distinct complex roots. So in that case, you have a square minus 4b, which is negative. And let us denote the roots by r1 and r2. Okay, so two solutions are, so one will be e power r1x, and as we know that if you have a polynomial with real coefficients, this is the polynomial, then you got two complex root and both will be in pair. So one will be conjugate of other. So if first root is, let us say, alpha plus iota beta, then you can write it as e power alpha x, and by using Euler's formula, you can write e power iota theta as cos theta plus iota sine theta by using Euler's formula. Okay, so since e power iota theta is cos theta plus iota sine theta. And similarly, you can write second solution, which will be complex conjugate of first, and you got e power alpha x. So you got e power minus iota, so you got cos beta x minus iota sine beta x. So we are interested only in real solutions. You got two different solutions, e power r1, but they are complex. They are complex solution. So what we do to find real solution, we can add both and divide by 2, and then divide, then subtract and divide by 2 iota to get real solutions. Okay, so add both, ऐड करोगे तो क्या आएगा, e पावर अल्फा एक्स cos बीटा, टू टाइम्स हो जाएगा. So 2, we are not interested in 2, so that will be adjusted by constant. If I am saying sin x is solution, then 2 sin x, 3 sin x, all are solution. Okay, so basic factor is, so first is e power alpha x cos beta x, एंड सेकंड क्या बनेगा, माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा. सो फर्स्ट वन विल कैंसल आउट. ओके, सो 2 iota sin beta x, and we are dividing with 2 iota, that is a constant, so you got e power alpha x sin beta x. And by calculating the Wronskian, you can check that both are linearly independent. So general solution is, so to get two solutions, say this is y1 and say this is
y2, and their linear combination is general solution. Okay, so in complex roots, the case is similar to real roots. To just get, so we are using one fact that if you have a polynomial with real coefficients, then you got complex roots in pair. फिर उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. So these are solutions. Case 3 is you have repeated roots. So equal real roots. Imaginary equal नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि हमेशा पेयर में आएंगे वो. ठीक है. इक्वल ये रूट इस केस में क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0. अब एक सोल्यूशन तो मिल गया आपको. सो वी गॉट वन सोल्यूशन. रूट इक्वल है तो एक ही आर मिलेगा आपको. से दैट इज आर या r1 जो भी कहोगे. और इसका वैल्यू कितना होगा फ्रॉम दैट इक्वेशन? दिस गाय इज 0. स्क्वायर रूट minus a by 2. minus a by 2, where r is minus a by 2. अब एक सोल्यूशन पता है, लेट अस से दिस इज y1. We can obtain second solution by using reduction of order method that I am going to explain just now. Using reduction of order, मैं एक बार सीधा यूज कर रहा हूँ. सो इसमें हम अज्यूम क्या करेंगे? वी अज्यूम सेकंड सॉल्यूशन, हमने वैसे फर्स्ट ऑर्डर में भी किया था, उसको हम लिख लेंगे v(y1). तो जो v का वैल्यू है, मैं एक बार सीधा लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ 1/y1 स्क्वायर e पावर माइनस जो p है px dx. p मतलब जो इक्वेशन में था हमारा, तो यहाँ पे तो हमने लिखा है y डबल डैश प्लस ए वाई, तो a है वो. सो 1/, अब r की वैल्यू इसमें फिट करोगे तो दिस इज जस्ट e पावर माइनस a by 2x. सो पहले वाले का स्क्वायर क्या बन जाएगा? e पावर माइनस ax. e पावर इंटीग्रल में भी p a है, dx का इंटीग्रल x, ये भी बन गया ax. ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपको मिल गया जस्ट x. तो सेकंड सॉल्यूशन क्या है आपका? y2 इक्वल टू x y1, यानी कि x e पावर rx. तो ये आप करते भी थे पहले ग्रेजुएशन में कि एक सॉल्यूशन है दूसरे को x से मल्टीप्लाई कर दो. इसका नाम सुना है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर? नहीं? So now I am going to explain this method that we have used here, reduction of order. So सेकंड ऑर्डर है इक्वेशन हमारे पास, रिड्यूस होके इसका फॉर्म चेंज होगा और you will follow first order in V. So you are reducing the order, so that's why we say reduction of order. So you have second order equation. I'm writing general, so not constant coefficient only. So I'm writing it in for linear non-constant coefficient. और हमें पता क्या है? लेट एक सोल्यूशन हमें पता है, लेट y1 इज वन सोल्यूशन, जो आपने कैसे भी निकाला है. y1 इज वन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन.
we can find another solution by assuming, वैसे होता तो क्या है कि अगर y1 सोल्यूशन है तो सी y1 भी सोल्यूशन होगा। तो इस कांस्टेंट को हम वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज आइडिया? सो आइडिया इज रिप्लेस दिस कांस्टेंट विद वेरिएबल। सो वी अज्यूम सेकंड सोल्यूशन इन दिस फॉर्म। v भी x का फंक्शन है यहाँ पे, y1 तो है ही, y2 भी है। इस फॉर्म में अज्यूम करेंगे। इफ वी गेट y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट देन इट्स ओके। अगर li मिल गए तो ठीक है। सो ओके, सो वी आर अज्यूमिंग इन दिस फॉर्म। और अपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा है, वो भी कुछ इसी फॉर्म में होता है। आगे पढ़ेंगे हम उसको भी रिव्यू करके क्विकली, कि एक सोल्यूशन पता है तो दूसरा उसमें एक फंक्शन मल्टीप्लाई कर दो। ये हमने अज्यूम किया y2 इक्वल टू vy1, वी विल फिट इन इक्वेशन। ठीक है, तो y2 हमने क्या लिखा है, vy1। तो डेरिवेटिव निकाल लो, डबल डेरिवेटिव चाहिए। फाइंड y2 डैश vy1 डैश प्लस v डैश y1 एंड फाइंड, सॉरी y2 डैश, डबल डेरिवेटिव निकाल लो। सो vy1 डबल प्राइम प्लस 2v डैश y1 डैश प्लस v डबल डैश y1, just differentiate twice. ओके, सो हम क्या करते हैं कि सो इफ y2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये आना चाहिए। ठीक है, y की जगह हम y2 फिट कर देते हैं। अब डबल डेरिवेटिव फिट कर दो, ऊपर लिखे हैं हमने। सो v y1 डबल प्राइम प्लस 2v प्राइम y1 प्राइम प्लस v डबल प्राइम y1 y2 प्राइम प्लस px y2 प्राइम। सो v y1 प्राइम प्लस v प्राइम y1 प्लस qx, y2 को फिट कर दो v y1। टर्म अरेंज कर लो, v वाले अरेंज कर लो, v के डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड। तो v के साथ क्या आएगा, पहले v के साथ y1 डबल प्राइम, फिर v के साथ ये मिडल वाला टर्म, दिस वन p y1 प्राइम, फिर लास्ट वाला q y1। ठीक है जी, फिर v डैश के साथ सेकंड टर्म होगा 2y1 डैश, फिर ये वाला v डैश प्लस p ऑफ x ही है। ठीक है, मिसिंग, तो y1 बच जाएगा। फिर जो बचा है v डबल डैश के साथ एक ही है, v डबल डैश y1 इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ y1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये टर्म क्या बनेगी फिर, 0। y1 तो सॉल्यूशन है ही, सो दिस गाय विल बी 0। तो आपको मिला क्या, v डबल प्राइम, उसको पहले लिख रहा हूँ मैं, प्लस v प्राइम 2y1 प्राइम प्लस py1 इक्वल टू 0। v डबल डेरिवेटिव लेफ्ट में रखो, उसको उधर ले जाओ, फिर डेरिवेटिव फिर डिवाइड कर दो। सो यू गॉट माइनस 2 y1 डैश अपॉन y1 माइनस p, ये बचेगा। मतलब ये सॉल्वेबल बन जाएगी इक्वेशन। इंटीग्रेशन कर दो इसका, क्या आएगा इंटीग्रेशन लेफ्ट का, ऑन इंटीग्रेटिंग
वी डैश को कुछ टी मान लो, सर log v dash. लॉग वी डैश आ जाएगा। वी डैश को टी मानोगे तो लॉग वी डैश आ जाएगा। इधर -2 लॉग y1, और p तो अभी हमारा अननोन है, जो भी होगा हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली फॉर्मुलेशन में क्या हुआ, वी डैश रह गया है ना। वी डैश से आपने वी निकाल लेना, तो ऑर्डर रिड्यूस हो गया ना। रादर देन सॉल्विंग सेकंड ऑर्डर, वी विल नाउ सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर। ये इंटेग्रल करना पड़ेगा आपको आगे, तो थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं आगे नेक्स्ट में। ठीक है, यहाँ तक तो लॉग दोनों कंबाइन कर लो, ये लॉग वाले है ना, इसको इधर ले आओ, तो लॉग y1 स्क्वायर बन जाएगा। लेफ्ट में आके लेफ्ट में ये बन जाएगा लॉग वी डैश, ये लिख सकते हैं नहीं? Yes sir. तो वी डैश की वैल्यू क्या आएगी, इंटेग्रल, सॉरी वी डैश एक स्टेप में, वी डैश लिखोगे तो डेरिवेटिव रहेगा, उसके बाद करेंगे हम। वी डैश इक्वल टू 1/y1 स्क्वायर e पावर माइनस p dx। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल बी इसका इंटीग्रल दैट आई हैव जस्ट यूज्ड। ठीक है, अभी हमने यूज किया था ना ये पिछले वाले में, Yes sir. x निकाला था. y2 क्या होगा, v y1। बस अब मिल तो गया हमें y2। अब कहीं ये तो नहीं आ रहा कि आपका y2 कांस्टेंट टाइम y1 तो नहीं आ रहा है, हम ये वेरीफाई हम कर, li है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं हम थोड़ा ना। सो टू चेक लीनियर इंडिपेंडेंस, क्या कैसे चेक करोगे, रॉन्स्कियन निकाल लोगे। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो आ गया तो क्या होगा, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। रॉन्स्कियन की वैल्यू क्या होगी, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। अब y2 को y1 में चेंज कर दो ना, एक में, y2 डैश क्या होगा यहाँ से, पहले सिंबल्स में चेंज कर लेते हैं, लास्ट में यूज कर लेंगे। v डैश y1 प्लस y1 डैश v माइनस y2, y2 को फिर आपने लिखना है v y1 और y1 डैश। तो एक टर्म कैंसिल होगी, ये लास्ट और सेकंड सेम ही है ना, y1 प्राइम, तो बचेगा क्या, फर्स्ट ही बचना है। अगर ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब, अब ये नॉन जीरो है, li हो जाएंगे. हाँ, ऊपर इसको देखो, इसको इधर ले जाओ, v डैश y1 स्क्वायर क्या आएगा, e पावर माइनस पी डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से मिल ही रहा है ना इंटरमीडिएट से, यहाँ आप v की वैल्यू डाल दो, v डैश करके, v डैश ऊपर लिखा ही हो मैंने, v डैश y1 को इधर ले जाओगे तो v डैश y1 क्या आ जाएगा, e पावर माइनस पी डी एक्स विच इज ऑलवेज नॉन जीरो। ठीक है, सो y1 एंड y2 आर linearly independent solutions. लास्ट टाइम फॉलो किया Yes sir. यूजिंग स्टार, या आप नहीं करना तो आप y डैश y सॉरी v ऊपर दे रखा है, इसका डेरिवेटिव करोगे वो यहाँ डाल दो, डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर जाओगे, ऊपर वाली लाइन डेरिवेटिव ही है, v डैश की वैल्यू फिट कर दो, y1 कैंसिल हो जाना है, y1 स्क्वायर बचेगा क्या, e पावर माइनस पी डी एक्स। So exponential never vanishes, so Wronskian is non-zero. So both are linearly independent solution, and hence y1 y2 they are fundamental set of solution जो बनेगा आपका y1 y2। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हमने अभी कर ही लिया, हमने एक्चुअली अप्लाई पहले कर लिया इसको, पिछले में किया था ना इक्वेरियल रूट्स में, ये यहाँ पे किया था ना कि मैंने ये अज्यूम किया तो v की वैल्यू डायरेक्टली हम फिट कर देंगे 1/y1 स्क्वायर e पावर माइनस पी डी एक्स। p यहाँ पे a ही था, कांस्टेंट था, तो ये x मिल गया आपको। ठीक है, and by formulation of reduction of order these y1 and y2 both are linearly independent solution. So if you want to solve one more example quickly you can do.
नहीं तो अपने कर ही रखे हैं थे ग्रेजुएशन में। एग्जाम्पल की जरूरत है? चलो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। एक्सरसाइज, इफ y1 is a solution of this equation, then find another Li solution y2। एक सोल्यूशन आपको दे रखा है, ट्राई टू फाइंड सेकंड सोल्यूशन, जस्ट अज्यूम vy1, ठीक है। अभी हमने जो किया था एग्जांपल में, और आंसर है इसका तो y2 का वैल्यू है वो -1/2x। जस्ट यू कैन डू, जस्ट राइट v, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना है, शुरू से दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट दिस, ठीक है, लिख लेना ऊपर की we assume second solution as y2 equal to vy1 where v is this 1/y1 square e power minus p dx। p क्या होगा इस क्वेश्चन में? सर 1/x। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, सेकंड डेरिवेटिव इज फ्री, सो फर्स्टली डिवाइड विद x स्क्वायर, तो p क्या आएगा? 1/x आएगा। So one similar equation before going to non-homogeneous, that is known as Cauchy-Euler equation। Cauchy, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, ये फिर से बताना y2 की वैल्यू कैसे आई -1/2x? इसमें रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में, सर ये जो आपने एग्जांपल लिया, एग्जांपल में ये पिछला यूज करना है आपने, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। क्या लिखोगे? सो फर्स्टली यू अज्यूम दैट y2 equal to vy1, okay, then using reduction of order you got v equal to 1/y1 square e power minus p dx। इससे निकाल लेना। ये जनरल टेक्निक है ना, इसको अप्लाई कर दो पिछले वाले को, इसको रिडक्शन ऑफ ऑर्डर को, अप्लाई दिस वन, ओके सर। अप्लाई डायरेक्टली, ओके। एक बार ड्राइव कर दिया, बार बार नहीं करेंगे ना। सो सेकंड यूलर, कॉशी यूलर इक्वेशन, so this equation is ax square y double prime plus bx y prime plus cy equal to 0 where a b c are constants। तो पहले में तो था कि कांस्टेंट कोफिशिएंट था, बट यहाँ पे आपके पास x की पावर है, ओके। तो इन इक्वेशन में होगा क्या, इक्वेशन क्या डेरिवेटिव है, तो हमें ये पता है कि x पावर समथिंग को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट x पावर समथिंग, मतलब ये सारे एडजस्ट होकर 0 बनेगा ना। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं सोल्यूशन, वी कैन अज्यूम सोल्यूशन इन x पावर समथिंग। ऐसा तो नहीं है कि इक्वेशन में आपकी x की पावर्स हो और सोल्यूशन साइन और कॉस आ जाएगा। तो हाँ, जैसे हमने पहले कांस्टेंट कोफिशिएंट था, कांस्टेंट कोफिशिएंट में आपने अज्यूम क्या किया था, e पावर rx। e एक ऐसा फंक्शन है जिसको बार बार डिफरेंशिएट करोगे दैट विल रिमेन सेम। तो हमने क्या अज्यूम कर रहे हैं इसमें, वी कैन अज्यूम, बाकी कॉलेज में आपने पढ़ा होगा, यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू e पावर t। ये किया था ना अपने कॉलेज में, तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली बन जाती है। बट हम क्या जनरल लिख रहे हैं, सो वी आर राइटिंग y इक्वल टू x पावर r, ठीक है। फिर देखते हैं फिट करके, इफ यू कैन गेट 2r then it's okay।
सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इसमें। सो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव करना है पहले आपने, आर एक्स पावर आर माइनस वन, सेकेंड डेरिवेटिव विल बी आर माइनस वन एक्स आर माइनस टू। ठीक है, तो इसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बोलते हैं। फिट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए एक्स स्क्वायर, ये एक्स की पावर दो कम किया, उसने दो ऐड कर दिया टू, तो सेम यानी कि कॉमन बन जाएगा पूरे से। फायदा तो यही है ना तब कि जैसे ई पावर समथिंग था पहले, तो ई पावर समथिंग पूरे में से कॉमन बन जाए। तो यहाँ पे भी वही आइडिया है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव विल रिड्यूस पावर ऑफ पॉलिनोमियल बाय टू। इसने दो कम किया, ये दो हमने ऐड कर दिया यहाँ से, इसने पावर एक कम किया, इसने ऐड कर दिया। अल्टीमेटली यू कैन टेक एक्स पावर आर आउटसाइड, आउटसाइड होगा तभी आपको मिलेगा आर, अगर कॉमन नहीं आएगा तो फिर यू कैन नॉट गो फर्दर। तो यहाँ आ जाएगा बी आर प्लस सी एक्स पावर आर इक्वल टू 0। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब जो ए आर आर माइनस वन प्लस बी आर प्लस सी इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख लो। सो ए आर स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म, फर्स्ट में क्या बचेगा, बी माइनस ए आर प्लस सी इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सिमिलर केस है पिछला, you can get two r's, these two r can be real, they can be imaginary, or they can be repeated roots। okay, so first two, तो तीन केस डिस्कस करेंगे हम जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, सो थ्री केसेस, तो पहला केस जो है, अब ज्यादा एक्सप्लेन थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स r1 and r2। okay, so solution are ये x की पावर li होंगी, ये x की कोई भी पावर हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट होती हैं ये, नहीं? Yes, sir. ठीक है, एक को दूसरे की टर्म में नहीं लिख सकते आप। कोई कहे कि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब की टर्म में लिख लूंगा, नहीं लिख सकते आप। एक्स की पावर 3/2 को एक्स की पावर 1/2 में नहीं लिख सकते। सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एनी पावर ऑफ एक्स, चेक करने की जरूरत नहीं है। सो बाई बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा केस है कॉम्प्लेक्स रूट्स, टू कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, तो एक रूट को आप अज्यूम कर लो कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो हमने रियल सॉल्यूशन बनाने हैं, तो एक हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, आप एक्स पावर r1 को ये लिख सकते हो e पावर Yes, sir. कैसे, सर e की पावर ln x, तो x हो जाएगा, ये मतलब r1 चाहिए यहाँ उसका लिखो। होल का पावर आना चाहिए हाँ, सर। ठीक लिखा मतलब, नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट एक और लगेगा r1 से पहले, कहाँ पे, ln x के बाद ब्रैकेट आएगा। चलो ये लिख सकते हैं, यस सर। e पावर log x ही होता है, तो सर r1 ln log x वो होगा। एक ही बात ही मैंने पीछे लिख दिया, एक ही बात है वो। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, ये log x नंबर है, r1 नंबर है, यू कैन, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। चलो ये लिख लो आपको, ठीक है। अब वैल्यू फिट कर दो इनकी, e पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा
log x, तो रियल पार्ट क्या बन जाएगा, सॉरी रियल मतलब जो रियल पावर है, ई पावर अल्फा log x और ई पावर आयोटा बीटा log x। ई पावर अल्फा log x कॉमन रहेगा, ई पावर आयोटा थीटा को आप लिख सकते हो, थीटा की जगह क्या है, बीटा log x, cos बीटा log x प्लस आयोटा साइन बीटा log x। ठीक है, अब सिमिलरली आप लिख सकते हो x पावर r2 को, सब कुछ सेम रहना है, बस यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाना है, क्या बनेगा, ई पावर अल्फा log x, बीटा को माइनस बीटा कर दो तो cos बीटा cos माइनस थीटा तो थीटा cos थीटा ही होता है, cos को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, साइन वाला माइनस बाहर कर देगा। ओके, x पावर r2 क्या है, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। सिमिलरली तो अभी हमने जो पिछले वाले में किया था कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, सो वी आर इंटरेस्टेड इन रियल सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, लीनियरिटी होती है ना तो सॉल्यूशन की लीनियरिटी, यू कैन ऐड प्लस माइनस कर सकते हो, y1 y2 सॉल्यूशन है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन ही होगा, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, सो वी कैन टेक, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा y1 है ई पावर अल्फा log x cos, ये बच जाएगा। यस सर। अब ई पावर log x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ई पावर अल्फा log x को क्या लिख सकते हो, अल्फा को यहां लिख दो, लिख सकते हैं, जो पहले किया था हमने वो दोबारा पीछे चले जाओ, इसको x पावर अल्फा लिख सकते हो, ई पावर अल्फा log x को x पावर अल्फा लिख सकते हो, ये अल्फा यहाँ है ना, यस। यहाँ डाल दो ऊपर, log m हम्म। पावर n log m होता है ना। ठीक है, तो ई पावर log x इज log x होता है, एक्स। ठीक है, तो y2 क्या बनेगा, ई पावर अल्फा log x, यहाँ साइन आ जाएगा, यानी कि उनको माइनस कर दो, माइनस करके 2 आयोटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, लिखना जाए। सो ऐड अबव 2, कौन से, ये वाले, ऐड एंड डिवाइड बाय 2 विच इज y1, सब्ट्रैक्ट एंड देन डिवाइड बाय 2 आयोटा, दिस इज y2। ओके, और इसमें cos और साइन आ रहा है, सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो दीज आर सॉल्यूशन। ठीक है, x पावर अल्फा cos बीटा log x and x पावर अल्फा sin बीटा log x. So these are two solutions when you have two complex roots for Cauchy-Euler equation. Now case 3. केस 3 क्या है, डबल रूट रिपीटेड, यानी कि तो इसमें r लिख लेता हूं मैं, दोनों रूट सेम होंगे। ठीक है, और r की वैल्यू कितनी होगी इक्वेशन से, जो हमने इक्वेशन लिखा था पहले, ये इक्वेशन तो ये है ना, ए आर स्क्वायर, ये वाला, r की वैल्यू क्या होगी रिपीटेड रूट के केस में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई 2 माइनस से, हाँ, तो इसमें b की जगह क्या है, सर b माइनस b a बाय माइनस 2 a, आएगा। a की जगह a ही है, तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, इक्वल रूट के केस में r का वैल्यू ये होगा b माइनस a बाई 2a। अब एक मिल गया आपको, दूसरा निकालना है ना, तो कैसे निकालोगे, अभी किया था हमने। सो x पावर r इज वन सॉल्यूशन, एक ही मिलेगा ना, रिपीटेड है ना। सेकंड कैसे निकालोगे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यूजिंग रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, अभी तो लगाया था। क्विकली बताओ मेरे को क्या आंसर आएगा,
ओपन कीजिए कॉपी। इसमें आप अज्यूम क्या करते हो, y2 को क्या लिखोगे, v y1, where v, what will be v, यहाँ इसी को सिंप्लीफाई करना, इसी के करते हो आगे, v की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, y1 को पहले लिख लो, x पावर r है, v की वैल्यू अभी इंटीग्रल में थी ना, 1/y1 स्क्वायर, ये था वैल्यू 1/y1 स्क्वायर, यानी कि 1/x पावर 2r।